Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. Hello everyone. Today we are going to see factorize. So in the polynomial we have seen the different concepts. अभी तक हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स पार्ट 1 में पॉलिनोमियल के बारे में क्या क्या सीखा है. सो अभी तक हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वी हैव सीन दैट व्हाट एग्जैक्टली मीन्स द पॉलिनोमियल and how it forms with by using the algebraic expression and which algebraic expressions are called polynomial. When the algebraic expressions containing variable having whole number power, that is called as a polynomial. And after that we have again seen different types of polynomials. After that we have seen how to perform the addition, subtraction, multiplication and division of the polynomials. So in the case of division we have seen the two methods, that is general method, regular division method, and the second one is a synthetic division method. After that we have done remainder theorem and factor theorem. Okay, and there is a last point in this lesson is a factorize. So ये जो polynomials है, तो polynomial के ऊपर के बहुत सारे ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए. अब ये polynomials के ऊपर दूसरी चीज जो है उनको फैक्टराइज कैसे करना है. जो polynomials दिए रहते हैं उनको फैक्टराइज कैसे करना है. Generally we know that what is meant by the factorization. Suppose number is given as a 21 and someone is told to factorize the 21. तो 21 को हम factorize कैसे करते हैं, उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं. कैसे? 7 into 3, 7 3s are 21. This is the prime factorization for 21. तो इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. ठीक है, तो फिर फैक्टराइज करना मींस क्या करना है, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है. ठीक है, उनके फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है. तो देखो सबसे पहले क्या दिया गया है हमें, 4x² - 24 ये हमारे पास दिए गए वाला है और इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है. ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले पहला जो है क्वेश्चन उसको डील करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो 4x² - 25 है. फिर से एक बार मैं लिखता हूं, क्या है 4x² - 25. तो मैं 4x² 25 को क्या इस तरह से लिख सकता हूं, 2x² - 5². क्या कुछ रॉन्ग हुआ या कुछ इसमें चेंजेस आ गया? नहीं, जितना भी लिखे वाला है दैट वन इज करेक्ट. सी 2x यानी 2 का स्क्वायर कितना है 4, x का स्क्वायर कितना है x², -5 का स्क्वायर कितना है 5². कुछ पॉलिनोमियल में चेंज हुआ क्या? नहीं, जो पहले था पॉलिनोमियल वही पॉलिनोमियल है लेकिन लिखने का तरीका अलग है. ठीक है, तो यहाँ पे देखने के बाद हमें थोड़ी सी यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं? फार्मूला दिस लुक्स एज a² - b². तो इसका एक्सपेंशन क्या है, इन वन ब्रैकेट a + b एंड इन अनदर ब्रैकेट a - b. तो ये इसका एक्सपेंशन है. ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, जस्ट a की वैल्यू एज 2x लिखनी है और b की वैल्यू कितनी लिखनी है 5. तो उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, इन वन ब्रैकेट 2x + 5 एंड इन अनदर ब्रैकेट 2x - 5. तो ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो गए. ठीक है, वो किसके हो गए फैक्टर्स. फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपको 4x² - 25, उसकी वो क्या है, फैक्टर्स. so this one first one is over. Okay, now see the second question. Now second is little bit different. In the first one polynomial is a binomial because it contains two terms.
Now there is a second polynomial which contains how many terms are there? 3 terms are there. Okay, so now that is a trinomial. So how to do the factorization of a polynomial which contain 3 terms or which is a trinomial? तो देखो यहाँ पे उनको किस तरह से करना है. चलो ये से फर्स्ट तो हो गया. सेकंड के बारे में देखो. सेकंड में लिखता हूँ फिर से एक बार 3x² + 7x + 2. तो इसको कैसे करना है समझ लो. सबसे पहले क्या करना है, x² का जो कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है 3 2 जा 6. तो मुझे 6 के दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए. सो 6 के दो फैक्टर्स जिनके एडिशन 7 आनी चाहिए वो कौन से हो सकते हैं 6 1 जा 6 बिकॉज़ 6 + 1 कितना होता है 7 होता है. ठीक है, और 3 2 जा 6 लिया होता तो क्या होता था उनकी एडिशन 5 आ जाती. लेकिन हमें क्या चाहिए जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट जो है उतना हमारा एडिशन होना चाहिए. अंडरस्टैंड. तो फिर इसको मिडिल टर्म को क्या करेंगे, इस मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहा जाता है. ठीक है, तो फिर 7x को क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे. इस तरह से देखो 3x² + 6x + x + 2. बस मैंने क्या लिया ये दो फैक्टर जो है उनको x लगा दिया है. ठीक है, तो अब देखो पहले दोनों में क्या कुछ तो कॉमन निकलेगा और सेकंड जो में कुछ तो कॉमन निकाल के एक ब्रैकेट बनाना है. ठीक है, मेथड समझ लो. इन दोनों में कॉमन क्या है 3x कॉमन निकलेगा क्योंकि यहाँ पर भी 3 2 जा 6 है और x दोनों तरफ है. यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे एक ही बार है. ठीक है, तो फिर देखो यहाँ से 3x जाने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा x + 2. ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन हमें ब्रैकेट सेम लाना है. कॉमन नहीं है तो भी उनके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन रहता है 1 रहता है. ठीक है, सो वी कैन टेक 1 एज अ कॉमन. अगर मैंने 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा x + 2 रह जाएगा. ठीक है, तो देखो इधर एक x ब्रैकेट कॉमन है और एक ब्रैकेट सेम है दोनों तरफ. तो एक ब्रैकेट निकाल लिया तो x + 2, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x + 1. सो ये देखो हमने क्या लिखा है, जो हमारा पॉलिनोमियल था जो कि एडिशन फॉर्म में था इस तरह से, उसको हमने क्या किया है प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है. इन दोनों का प्रोडक्ट वही आता है पॉलिनोमियल. वैल्यू पॉलिनोमियल की चेंज नहीं हुई है, फॉर वैल्यू इज द सेम. पहले जो पॉलिनोमियल था वही पॉलिनोमियल यही है. दोनों इक्वल एक्सप्रेशंस है बट यहाँ पे खाली उनको प्रोडक्ट फॉर्म में दिया गया है, उनको फैक्टराइज किया गया है और यहाँ पे जो है एडिशन फॉर्म. ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन. क्या आ गया उसका x + 2 और 3x + 1. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. अब देखो थर्ड क्वेश्चन आगे देखना है. थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरह से है. फर्स्ट वाला अलग था, सेकंड क्वेश्चन उससे अलग है. अब ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर टू सेकंड क्वेश्चन है. उसमें क्या करना है वो देखेंगे हम. थर्ड क्वेश्चन में देखो 63x² + 5x - 2. तो देखो इसमें क्या करना है हमें. सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में x² का कोएफिशिएंट जो है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया था. तो यहाँ पे देखो फिर से 63 × 2 करो. इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है नेगेटिव आता है. सो इट गिव्स अ -126. तो मुझे -126 के दो फैक्टर्स चाहिए जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए 5 आनी चाहिए. ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन एनीथिंग. सो आप अगर इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करोगे तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसके दो कॉम्बिनेशन बनाओ. 126 के अगर हमने दो कॉम्बिनेशन बनाए, देखो 126 को पहले क्या करना है फैक्टराइज करना है. ठीक है, तो फैक्टराइज करते समय सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. सो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अगेन 3 7, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 3 7 जा 7, 1 आ गया. तो देखो तो ये उनके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. इसके हमें दो कॉम्बिनेशन बनाने हैं. देखो यहाँ पे अगर मैंने 2 7 जा 14 एंड 3 3 जा 9 अगर दो पेयर बना दिए कौन से 14 और 9, 14 और 9, तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो कितना आता है. प्रोडक्ट देखो 14 और 9 प्रोडक्ट आता है 126. लेकिन हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए और प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए और सब्ट्रैक्शन जो है क्या आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए. तो किसको लगाएंगे साइन, इसको लगाएंगे. तो प्रोडक्ट करने के बाद 14 9 जा -126 आ जाएगा और 14 में से 9 जाने के बाद 5 आ जाएगा. ठीक है, तो देखो फिर इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को. तो कैसे लिख सकते हैं 63x² +
14x माइनस 9x प्लस माइनस 2 है, जो है ऊपर वही लिखना है हमें, ठीक है। तो देखो पहले दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, पहले दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 7x में निकाल सकता हूँ क्योंकि 7 9 63 यहाँ पे भी है और 7 2 14 वहाँ पे भी है। तो 7x मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9x बच सकता है, 7 9x, ओके। और यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस 2, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 में से भी ऐसा कुछ तो कॉमन निकालना चाहिए ताकि हमें ब्रैकेट दोनों तरफ सेम मिल जाए, ठीक है। सो आई विल टेक अ -1 एज अ कॉमन, -1 मैंने कॉमन लिया तो वहाँ पे क्या रह जाएगा, 9x प्लस 2। तो देखो एक ब्रैकेट में 9x प्लस 2 एंड इन अनदर ब्रैकेट 7x माइनस 1, ये उसका फैक्टराइजेशन हो गया। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरह से था, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था कि सेकंड क्वेश्चन में जो है आपको जो आए वाला प्रोडक्ट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो वैसा छोटा नंबर था, तो वहां पे आपको फैक्टराइज करना इजी गया, आपको उसके पेयर निकालना, वो प्रोडक्ट पेयर निकालना आपको वहां पे इजी गया क्योंकि आपको वो याद हो गए। लेकिन 126 थोड़ा सा बड़ा नंबर था, उसके हमें क्या करना पड़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन से उनके फैक्टर्स ढूंढने पड़े और उनमें से कितनी दो की जोड़ियां बना के हमने ट्राई किया, तो वहां पे क्या अप्लाई हो गया, 14 9 जा 126, दैट वन विल बी एप्लीकेबल, ओके। सो यहाँ पे हो गया उनका आंसर। अब देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है, सी। तो नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या अलग है, या उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, 6x स्क्वायर minus 5x एंड अगेन minus 6। अभी देखो सब पे कुछ ना कुछ तो चेंज है हर एक क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में बाइनोमियल था तो वहां पे आइडेंटिटी लगा दी। सेकंड क्वेश्चन में जो है दोनों तरफ प्लस साइन था, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मेथड सेम है सेकंड और थर्ड में, लेकिन इसमें दोनों जो है टर्म थ्री टर्म्स एडिशन से प्लस से कंबाइन हो गए थे, दोनों प्लस साइन थे। और थर्ड क्वेश्चन में क्या हो गया, एक प्लस और एक माइनस साइन था, ओके। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, बोथ द टर्म्स यहाँ पे जो है दोनों तरफ क्या है, नेगेटिव का साइन है, ठीक है। दोनों क्या है, नेगेटिव है। अब देखो फोर्थ को किस तरह से हमें फैक्टराइज करना है, दोनों में क्या है, माइनस साइन। तो देखो सबसे पहले 6 6 का क्या हो जाएगा, 36। हमें 36 के और वो भी कैसा, -36 चाहिए क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उन दोनों का प्रोडक्ट आता है -36। तो -36 के हमें क्या, दो फैक्टर्स चाहिए, ठीक है। और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। सो विच आर दैट 9 4 जा 36, तो ये कर सकते हैं, लेकिन किसको माइनस साइन लगाना चाहिए हमें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन -5 चाहिए, बड़े नंबर को साइन लगाए तो ही आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसीलिए मैंने क्या किया, 9 को नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। तो अब देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 6। देखो इसको आप कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो आपको फिर से ऊपर का टर्म मिल जाएगा। सो 4x माइनस 9x इज व्हाट, दैट इज 5x, ठीक है। अब देखो इन द फर्स्ट टू वी कैन टेक अ कॉमन एज 3x, इन दोनों में से मैं 3x कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3x, यहाँ पे 2x रह गया, माइनस यहाँ पे कितना रहा, 3। देखो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके देखो आंसर आपको ऊपर के टर्म्स मिलने चाहिए। सो 3x into 2x 6x square, 3x into -3 it gives -9x। अगेन इन द नेक्स्ट टू आई टेक अ 2 एज अ कॉमन, 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या बच जाएगा वहां पे, 2 2 जा 4x एंड अगेन -3। देखो दोनों तरफ ब्रैकेट सेम मिलते हैं। जनरली ऐसे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में दोनों तरफ क्या मिलने चाहिए, ब्रैकेट सेम मिलने चाहिए, ठीक है। तो देखो इन वन ब्रैकेट 2x - 3 एंड इन अनदर ब्रैकेट 3x + 2, ठीक है। तो अब देखो दोनों तरफ ब्रैकेट सेम मिल गए थे, उनमें से हमने कॉमन निकाला तो इतना रह गया हमारे पास, ठीक है। तो देखो फिर ये हो गया फोर्थ का फैक्टराइजेशन, इस तरह से उनका फैक्टराइजेशन किया जाता है। सो नाउ हियर वी हैव सीन द फैक्टराइजेशन मेथड टू डूइंग द पॉलिनोमियल्स फैक्टराइजेशन। तो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जाता है, यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे सीख लिया है कि किस तरह से फैक्टराइजेशन करना है पॉलिनोमियल्स का, ओके। आफ्टर दैट अगेन एक दो क्वेश्चंस बाकी है जिनका हमें पॉलिनोमियल्स है उनको क्या करना है, फैक्टराइज। ये तो सिंपल पॉलिनोमियल्स थे जहाँ पे हमने एक को आइडेंटिफाई
फैक्टराइज किया है। कुछ और क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली इस तरह से ax स्क्वायर bx प्लस c फॉर्म में नहीं दिखते हैं, लेकिन उनको कुछ कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स थे वो ax स्क्वायर bx प्लस c फॉर्म में थे, लेकिन अगर नहीं है तो उनको क्या करना है, कन्वर्ट करके उनको फैक्टराइज करना है। तो ठीक है, तो उस टाइप के भी एक दो क्वेश्चंस हम देखेंगे और किस तरह से उनको फैक्टराइज करना है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।